हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये वीडियो जब CIA देखेगा, मोसाद देखेगा और इनके मामू जान ये पाकिस्तानी देखेंगे। पानी की मशीनें लड़के उतार के ले जा रहे हैं, दही और दूध वाले को लोग लूट रहे हैं, तो फिर क्या रह गया जी? कुछ भी नहीं रह गया, खेल खत्म, पैसा हजम है। If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. पाकिस्तान तो अब आप उसे एक रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब जिस प्रकार से जा रहा है, जैसे बांग्लादेश छिटक गया, हो सकता है बाकी के भी प्रदेश आपके जो है वो छिटक जाए। ये जो हाफिज सईद का जो हुआ है, इसमें 100% ये चांसेस हैं कि इंडिया जो है उसने इन्वेस्टमेंट की होगी। You are asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. आपके साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, लेकिन हमने साथ हनुमान को भी बुला लिया है, हमने महादेव को भी बुला लिया है, हमने गणेश को भी बुला, हमने सारे भगवान हिंदुस्तान के बुला लिए हैं और उन तमाम भगवानों के। When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this country. पाकिस्तान की इस किस्म की इल्जाम तराशी जो है उसको दुनिया कोई सीरियसली नहीं लेती। एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को आप नहीं निकाल पाए, जबकि आपके पास है पाकिस्तानी कॉपरेशन बहुत सारा है, भरपूर है। तो आई थिंक आपकी सलाहियत कहीं ना कहीं कमजोर है। ये वो पंजाबी हैं जो उर्दू बोल नहीं पाते, लेकिन उनको बोलने का शौक है, तो ये पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। I read the reports on what Minister Hina Rawani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rawani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. So I would say that it's something which they should remind themselves before indulging in the kind of fantasies which they do. Pakistan have been accusing each other about terrorism. Hina Rabbani, as you said, yesterday, she brought up this. Could you come to the question? My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out.
So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your... फॉरेन मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि हाँ जी उसामा बिन लादेन यहाँ पर था, लेकिन बात सारी ये है कि उन्होंने कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको एक बार फिर उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया। उन्होंने कहा जी बुच्चर, उन्होंने कहा कि जी गुजरात का बुच्चर कहा, और इस किस्म की बातें उन्होंने करके एक बार फिर जो है ये साबित किया है कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, और इस किस्म की बातें जो है वो उनको जेब नहीं देती। हीरा, ये आपकी जो भी रबीना खार हैं, इन्होंने एक लिस्ट निकाली है, 17 लोगों की लिस्ट है, उसमें 3 लोगों को छोड़ के बाकी सारे के सारे तो पाकिस्तानी हैं। तो अगर इतने सारे लोग पेरोल पे हैं और तब भी आप नहीं निकाल पा रहे, तब भी आपका ब्लास्ट इतना थका हुआ था कि हाफिज सईद जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट जो कि लाहौर में शरेआम अंडर प्रोटेक्शन घूम रहा था, आप उसको नहीं निकाल पाए। एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को आप नहीं निकाल पाए, जबकि आपके पास में पाकिस्तानी कॉपरेशन बहुत सारा है, भरपूर है। तो आई थिंक आपकी सलाहियत कहीं ना कहीं कमजोर है, आप में वो सलाहियत नहीं है। और जब चीमा साहब कहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को बड़ा गर्व होता है, वी फील प्राउड कि चलो हमारे बंदों की कहीं ना कहीं तो तारीफ हो रही है। और तो इस लिहाज से देखा जाए तो इट्स एन ऑनर। थैंक यू चीमा साहब। सेकेंडली, जो बात बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से हुई थी, देखिए हम एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते रहेंगे, उसकी कोई एंड नहीं है। माजी में क्या हुआ उसके ऊपर खूब सारी बातें कर लेंगे, लेकिन हमें अगर फ्यूचर को देखना है और हमसे ज्यादा अगर आप लोगों को फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है, तो आपको जो अभी तक ये जो भी आपने गेम खेला है उससे आपको चेंज करना पड़ेगा अपना पैटर्न। आप उसी गेम को दोबारा नहीं खेल सकते। जैसे फौज में कहते हैं कि यू डोंट रीएनफोर्स ए फेलियर। ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ये फेल हो चुकी है, और एक बार नहीं कई बार हुई है। और जितना पाकिस्तान इस पॉलिसी को पुश करता है उतना अपना नुकसान करवा लेता है। आप इसको कैलकुलेटेड तरीके से आप इसका एनालिसिस करिए। कैलकुलेटेड कह रहा हूँ, साइंटिफिकली आप इसका एनालिसिस करिए कि आपने जब इस कहानी को लेकर अपना एजेंडा आगे किया है और फौज को आगे किया है, या फौज ने पॉलिटिशियंस को आगे किया है, नुकसान एट द एंड ऑफ द डे किसका हुआ है? हमारा भी हुआ है, हमारी भी पैसा खर्च होता है, जाने जाती हैं, लेकिन हारता कौन है? हु इज द बिगर लूजर? आज आपके कंट्री के हालात देख लीजिए, ये हालात कैसे पहुंचे? ये इसलिए पहुंचे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं थे। प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। सिचुएशन चेंज हो गई है पिछले 75 साल में, थिंग्स हैव चेंज, और इंटरनेट का जमाना है। आज के जमाने में कश्मीर का एक एक बच्चा जो है इंटरनेट देख रहा है, वो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसकी इमेजेस देख रहा है, पाकिस्तान में क्या होता है उसकी इमेजेस देखता है, फिर वो प्रोपेगेंडा दोनों साइड का कंपेयर करता है और फिर खैर मनाता है कि देखो यार हम लोग बच गए। आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके का डेवलपमेंट है, जिस तरीके की पीसफुल सिचुएशन है, और जो यंग बच्चों के अंदर जो एस्पिरेशन है, और वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने आप को कि रियलिटी क्या है और इतने सालों से हमें बेवकूफ बनाया गया, वो कहानी क्या है। देखिए, आप चाहे कितना भी कंट्रोल कर लें, आप कितनी बड़ी फौजें लगा लें, लेकिन जो रियल सेंटिमेंट है वो आप दबा नहीं सकते। ईरान नहीं दबा पाया,